Okay, so share my screen. सो आई हैव योर गिटहब. मैंने इसको पहले ही देख लिया था कि अपन एक बार इसको असाइनमेंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स गो वन बाय वन, है ना. एक बार जानवी का देख लेते हैं, देन विल हैव अ लुक एट योर्स चिरंजीव. इसको एंड एक बार डिस्कस करके विल प्रोसीड फर्दर फॉर टुडेज टॉपिक्स. ओके, सो I think for entity, Janvi, I already told you to follow the naming conventions for the file name. So चिरंजीवी तुम भी चेक कर लेना कि ये entity folder हमने बनाया which is right the way Mockey uses it. And inside, I think earlier the name was like mockeytraining.xml. So we should always follow जो भी conventions or naming practices, एक तो जो general रहते ही हैं, plus since we are doing the development in Mockey, so we should follow कि जो existing patterns हैं हम उसी के हिसाब से अपनी चीज़ों को भी डिज़ाइन करें. Okay, so if you see in the existing, when I say existing है ना, framework में जो existing out of the box examples है. Okay, so if you see in different components which are already available, so हमेशा entity का नाम, just to like easily recognize it that we have defined entities in it, हमेशा what entities you're defining and entities.xml हमेशा ये suffix के साथ ही करोगे, so it's always good. Okay, so that अपना भी consistent रहेगा, our application will be consistent with others in the Mockey development. Okay, so this is okay. Yeah, so I think ये package के लिए भी ना, so you should always follow again the naming practices, जो भी best practices है कि जैसे ये hyphen से अभी किया है ना, try to follow it. All lower case is fine. And again, तो जहाँ पे भी ये सब confusions आती है ना, go and check the existing code. Okay, I'll take the example of the example entities.xml. Okay, so see, the way they've defined the package is Mockey, then this period operator dot example. So try to use it in the similar way. तो तुम लोग उसको change करके, it's better if you do it Mockey dot training. Okay, then it will be in line with our Mockey conventions also, and it's always better to give a name like this package के लिए. I don't know, शायद इसके कारण issue आ रहा था, ये hyphen use किया है, maybe we can check that. Okay, and another thing, और भी जैसे did you guys import the UDM and USL, वो components लिए क्या? Yes, ma'am. Okay, so you will get a lot of examples there as well. So UDM में तो अपनी entities ही रहती हैं, so एक तो naming भी देख सकते हो तुम लोग, and if you check any से order entities, just check the package name. So हर जगह ये लोग ऐसे ही define करते हैं, this is actually the right way to define a package. Okay, जैसे ये mantle की entities तो mantle dot order, product की होंगी तो mantle dot product. Okay, and for your example, since I've been also developing एक tutorial मैंने भी बनाया था, let me show you that. So see, when I did this entity, training के जगह I've just given the name tutorial. So I defined my package as mocky.tutorial. And I've tried it. I think in the last session also I used the entity tools and I showed you how I added one data and it was working fine. So इसको एक बार देख लेना package name को. I think this should resolve your issue. Okay. And okay. And ये component.xml file भी add कर दो. Okay. With the basic structure, give the name and version and keep it in your component repository. The rest looks good to me. Okay. So the field names are okay and the data types are also, they look fine to me. So ये जानवी इसको component.xml डाल देना, है ना, एक existing example को देख के. Yes, ma'am. एक बार इसको भी देख लेते हैं. So इसमें template add कर देना, है ना, component.xml का. So these Yes, two ma'am. files always keep it in your component. Okay, configuration file, I think this I checked for both of you, you guys have added it. इसमें भी name change कर देना. And Yes, ma'am. I think a similar, I think pattern तुमने जो package का किया है ना, just change it and check it. I'm quite hopeful it should work. Okay, it should not give an issue. Yes.
एंड जो भी तुमने डेटा फाइल्स बनाओगे ना, लेट मी जस्ट क्लोज दिस टैब. सो उसमें भी यही कन्वेंशंस फॉलो करना कि see inside the data folder, just give the name as say training data.xml. Give that name properly, and then यहाँ से तुम्हारे पास examples तो है ही, you can check and see how they have written it. Okay. So should we proceed? Is that good, or you guys want to still check it? तो अपन एक बार मैं इसको वापस से चला के बता देती हूँ. Let me run it. Database and everything got connected. Did you guys check in the console? सब चल रहा था ना? तुम्हारी टेबल बन गई थी. Everything was working. Yes, ma'am. Okay. What we can do is just to quickly check. Let me give the एक काम करते हैं. Let me copy the code from your entity and देखते हैं does it work or not. Okay. Yeah, see. So did you guys add the schema? मैंने बोला था ये entity definition का schema add कर दो. See, since I've already added, मेरे को ये यहीं पे error दे रहा है. And it's quite like easy कि मुझे यहीं पे पता चल गया. I do not have to go run it. So can you see the value it's saying of the attribute package is not valid with respect to its type name package. So this is not a valid name. That's why you guys were facing issues while loading data to it. Okay, जैसे मैं change कर दूँगी, see the error went off. Okay. So just check this. ये XSD locations भी, that's why I was stressing on it कि ना बहुत help करता है अपने को development environment में. Okay. Now I think we don't need to run it also. अपने को issue समझ में आ ही गया है. So you can now correct it and just push the code. Okay. Cool. तो ये भी चेक करना कि तुम लोग को ये एरर्स आ रहे थे क्या, ये प्रॉपरली ऐड हुए हैं क्या एंटिटी डेफिनेशंस. जो एक्सएसडीज मैंने बोले थे ना, स्कीमा लोकेशंस को ऐड कर लेना, ये भी एक बार चेक कर लेना अच्छे से, है ना. Okay, then I'll not go through this again since we have figured this out, and please वो correct करके push कर देना code को, है ना. Since now today anyways we'll be moving forward with the next assignment. Okay. Okay. ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं अपन. So for this session, what I had in my mind was that we have had a look at the entities and the basic data load part. So अब we'll have a look at the services. Okay. दिस इज़ वन ऑफ द मेन टॉपिक्स वी हैव टू कवर. इसको अच्छे से देखना है अपने को. सर्विस कैसे लिखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, सर्विस डेफिनेशन को कैसे रीड करते हैं, क्या इनपुट पैरामीटर्स है, क्या आउटपुट पैरामीटर्स हैं, एंड हाउ कैन आई कॉल डिफरेंट सर्विसेज. एंड व्हेन वी राइट services there are different types of services we can use as per our requirement. So आज के सेशन में we'll try to cover all these things. सो एजेंडा ये रहेगा, अपन पहले सर्विस डेफिनेशन देख लेंगे. We'll have a look from the website, and then again in IDE some examples from the existing code. Then यहाँ पे जब भी तुम सर्विस डेफिनेशन देखोगे तो बहुत बार ये टर्म आएगा कॉन्टेक्स्ट. तो अपन एक बार एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है मॉकी फ्रेमवर्क में, उसको एक बार हाई लेवल टच कर लेंगे. So that whenever now you will start digging into the services, so you should know कि context क्या है. Then we'll have a look at service implementation. There are different types as I was telling you. So main we have to check the inline services, entity auto, and script में we have to see कि groovy script से मैं एक service को चला सकते हैं अपन. Then we also have interface, so and how we can call these services. So ये सब अपन cover करेंगे आज. So in the official documentation, you can see under Mocky framework, we have the topic logic and services. So the explanation is given. We'll try to have a look at what is important for us right now to write a basic service. Okay.
सो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज मॉकी फ्रेमवर्क में इट इज़ द मेन यूनिट ऑफ लॉजिक. Okay, so Moki is a service oriented architecture. So it has a collection of services using which we write different actions and operations inside it, and we are able to define that what needs to be done exactly. Okay, तो ये object oriented नहीं है, ये service oriented है. So services are very important when we are learning Moki framework. Okay, सो सर्विसेज को डिफाइन कैसे करते हैं? सो अगेन इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सिमिलर टू द एंटिटी एंड डेटा फोल्डर, we have to make sure we have a service folder inside our component, and inside that we'll have all our services xml files. It can be xml file, या अपन स्क्रिप्ट को कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे अपन, but it has to be a services xml file. And how do we define that? So we have to use the service element यहाँ पे. Okay, देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज अपने पास एक वर्ब रहता है और एक नाउन रहता है. ठीक है, अभी एक बार डॉक्यूमेंटेशन से देख लेते हैं, देन विल गो इनसाइड द आईडीई एंड ट्राई टू हैव अ लुक एट द डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स जो एक्सएसडी में है. इट विल हेल्प अस कि हर एक एलिमेंट क्या करता है. ठीक है, एक बार अपन यहाँ से पहले देख लेते हैं. सो द वर्ब विल टेल दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन आई हैव टू डू. से क्रिएट करना है मुझे पर्सन का रिकॉर्ड, डिलीट करना है, आई हैव टू डू अ फाइंड. So there are some inbuilt verbs which we can use in Moki, so that we can use inside the verb. And then noun, it tells us कि किस पे operation करना है. Okay, it has to be a meaningful name. There are two ways कि या तो हम entity name दे दे directly, वही अपनी entity auto service हो जाती है, which I'll just tell in some time. या फिर हम एक मीनिंगफुल नेम दे कि इससे सर्विस नेम से हमें पता चलना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है. सिमिलर टू अपन जैसे मेथड्स का नाम देते हैं, क्लासेस का नाम देते हैं, सिमिलर इसका एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए. देन अब जैसे ये सर्विस डिफाइन हो गई मेरी, वर्ब दे दिया मैंने, नाउन दे दिया. सो अब इस सर्विस का एक पाथ हो जाता है दिस, सी डॉलर सिंबल, इफ यू कैन सी दिस द बोल्ड वन, पाथ डॉट वर्ब, देन द पाउंड सिंबल और हैश, एंड देन द नाउन. ओके, सो सो ये जो सर्विस है इट इज़ रिटन इनसाइड द पार्टी सर्विसेज फाइल. सो इसका फुल नेम हो जाएगा mantle.party.party services, which is the path of this file, dot create, which is the verb, pound symbol and then the noun. Okay, so whenever I have to access this service you have to follow this pattern. Okay, then अब एक सर्विस तो लिख दी, it has to take some input parameters. तो उसके लिए we have this input parameters. Then we to return back some the results we have to define output parameters, जो out parameters से बताते हैं हम लोग. And inside the actions this contains our main implementation logic. Okay, now let's check this in the IDE once. एक बार इसको डिटेल में सारे attributes को देख लेते हैं अपन. So what I've done is, so this is the same service which I have which we were just checking in from the documentation. So ये अपने पास है. So that's why I asked you guys to keep this mantle USL and mantle UDM already in your system. तो यहाँ पे service के अंदर if I go inside mantle party, I have my party services. Okay, this is the file. So इसमें ये अपना service defined है एक. So if I check the verb, see, so this can be any verb and will be often one of the create, update, store, delete, find. तो ये ध्यान रखना कि इनमें से ही अपना होना चाहिए. क्रिएट इज फॉर क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड, अपडेट अपडेट करने के लिए, डिलीट है अपने को डिलीट करने के लिए, फाइंड इट्स लाइक अ सिलेक्ट, अपने को कुछ डेटा फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस. एंड देन स्टोर इज अ स्पेशल कीवर्ड, इट टेक्स केयर ऑफ क्रिएट और अपडेट बोथ. तो अगर तो वो रिकॉर्ड ऑलरेडी है तो अपडेट कर देगा, अगर नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा. ओके, इसके सबका यूजेस हम एनीवेज एक बार देख लेंगे. Then we already saw the full name of the service, which has to be in this format. Now verb is the required field of this of a service element. तो verb तो अपने को चाहिए. You can still like omit the use of the noun, but verb should always be there. लेकिन it's always recommended that you give the noun since it gives us the context कि ये operation हम किस पे कर रहे हैं. Okay, so
अब नाउन में क्या क्या आ सकता है? सो एंटिटी ऑटो सर्विसेज में दिस शुड बी अ वैलिड एंटिटी नेम. Again, we'll check this example in a while. In other cases, what they're saying is an entity name is the best way to describe what is being acted on. But this can really be anything. Again, मीनिंगफुल नाम देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि अपन ये सर्विस क्रिएट अपडेट अगर डिलीट कर रही है तो किस पे कर रही है. ओके, सो दिस यू हैव टू टेक केयर. देन आई टोल्ड अबाउट द इनपुट पैरामीटर्स. अगेन जो भी अपने को इनपुट चाहिए इस सर्विस के लिए, डेटा बनाने के लिए. Then you can see a special thing called auto parameters यहाँ पे. And inside the auto parameters they have given an entity name. Okay, so ये party entity है अपनी. So what auto parameters does is it will pull in all the fields of this entity, so that now your entity can input all the fields of this entity. You don't have to explicitly define each and every one here. ओके, सो इट कम्स इन हैंडी जब अगर एंटिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं एंड अपने को सारी फील्ड्स का इनपुट का ऑप्शन देना है, देन वी कैन यूज दिस ऑटो पैरामीटर्स. ओके, वील सी दिस इन द सर्विसेज रेफरेंस ऑल्सो, ताकि तुम लोग को एक बार देख लो ये कैसे ले लेता है सारी पैरामीटर्स को. ओके, देन सी अनदर parameter which they are using is auto parameters on another entity. एंड देन दे वांट कि हम लोग सिर्फ नॉन प्राइमरी की फील्ड्स को ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं इन दिस सर्विस. ओके, सो यू कैन यूज द इंक्लूड एंड देर आर 3 डिफरेंट ऑप्शंस विच यू कैन यूज. अगर सिर्फ प्राइमरी की चाहिए, अगर उस एंटिटी की, तो पी के यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज नॉन पी के इज ओनली नॉन प्राइमरी की फील्ड्स, एंड ऑल में इट विल पुल अप ऑल द फील्ड्स ऑफ योर एंटिटी. सो बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट वी कैन सी कि अपने को कौन सी फील्ड्स चाहिए for our service definition. Then there are some simple parameters कि first name last name है. अगर किसी सर्विस पैरामीटर को मुझे मैंडेटरी बनाना है, then we have the required attribute. Okay, once I set required true, तो ये service will take care of validating this parameter that ये value इसमें आनी चाहिए, otherwise it will throw the error that your value is missing for the first name. Okay, सिमिलरली यहाँ पे जैसे लास्ट नेम और दूसरे सिंपल पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए. यू कैन ऑल्सो गिव द टाइप हियर, है ना, इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द स्पेसिफिक टाइप्स, डेट टाइम या बिग डेसिमल, तो ये सब तुम टाइप भी यहाँ पे बता सकते हो. एक बार इसको डॉक्यूमेंटेशन से देख लेते हैं. So the explanation of all these elements are also available in the website. और अदरवाइज द सेकेंड बेस्ट प्लेस इज, आई वुड, सबसे अच्छा तरीका और रहता है कि XSD से देख लो, तुमको सारे एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है. ठीक है, then there are many other attributes which we can use. So I found a service जिसमें मोस्टली सारे एग्जाम्पल्स अपने को मिल जाएंगे, अपन वो चेक कर लेते हैं. एंड देन द वैलिडेशंस व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो एक तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है अपने वैलिडेशंस के लिए, प्लस इफ़ यू वांट टू वैलिडेट अदर टाइप्स ऑफ डेटा, लाइक से मुझे एक फ़ोन नंबर लेना है एंड आई वांट फ़ोन नंबर टू बी इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, कि हम कोई भी फ़ोन नंबर का डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सो ये मैचेस एलिमेंट को यूज़ करके यू कैन गिव अ रेगुलर एक्सप्रेशन इन इट, एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल टेक केयर ऑफ वैलिडेटिंग योर इनपुट अगेंस्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन विच यू हैव गिवन. एंड गलत होता है तो इट विल, फ्रेमवर्क विल टेक केयर ऑफ थ्रोइंग द एरर बैक. ओके, देन और भी अपने पास नंबर रेंज देना है, नंबर, इंटीजर, डेसिमल. You want to give a length, the minimum and maximum range of your length of the text, then you can use the text length. अगर email, URL, letters, digits इस टाइप का ही डेटा इनपुट कराना चाहते हैं, then they have already provided some existing validation attributes. तो तुमको बस पैरामीटर में ये ऐड करने हैं and our work is done. Okay, टाइम रेंज क्रेडिट कार्ड, तो इसका एक एग्जांपल लेट्स क्विकली चेक. पार्टी सर्विसेज में स्टोर क्रेडिट कार्ड. Okay, sorry, it's in customer services.
तो ये कस्टमर सर्विसेज है अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैंटल यूएसए. सो सिंस दिस हैज़ अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स तो अपन इसको कवर कर सकते हैं. ऑटो पैरामीटर्स की हमने बात कर ली कि अपन एंटिटी के लिए जैसे कोई भी फील्ड्स को पुल करना हो तो ये यूज़ कर सकते हैं. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफ़ॉल्ट वैल्यू. तो अपने को अगर इस पैरामीटर के लिए अगर कोई इनपुट नहीं आ रहा है फ्रॉम से द एग्जिस्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल यूज़र, तो अपन एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा सेट कर सकते हैं यूजिंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यू. तो इसमें अगर कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है तो इट विल ऑलवेज क्रिएट द रिकॉर्ड्स विद दिस डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर दिस फील्ड. ओके. देन ऐसे ये क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल था, तो क्रेडिट कार्ड का पैरामीटर के अंदर सी द वे वी हैव टू यूज दीज एलिमेंट्स इज इनसाइड द पैरामीटर. Okay, so it will take care of validating this input against the valid credit card number. Okay, then कुछ simple fields हैं. Then again default value में यहाँ पे date type है. So what they're saying is कि अगर कोई date नहीं आ रहा है तो तुम लोग जो expire month इसमें से जो values आ रही हैं उसको लेके prepare करके ये data add कर दो. अब डेट का हमेशा बहुत बार फॉर्मेट हमको डिफाइन करना पड़ता है. सो यू कैन गिव अ टाइम रेंज एंड देन यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द फॉर्मेट कि मुझे वाई में चाहिए. ठीक है. सो ऐसे मंथ और ईयर में आना चाहिए इनपुट. सो यू कैन यूज़ दीज वैलिडेशंस जैसे भी अपने को फील्ड के हिसाब से रिक्वायरमेंट है. देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू वी ऑलरेडी चेक्ड. अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ एक डिफ़ॉल्ट भी रहता है. सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ द स्ट्रिंग वैल्यू जो सेट हो जाती है एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर योर पैरामीटर. डिफ़ॉल्ट तब यूज़ करते हैं जब हमको एक एक्सप्रेशन यूज़ करना हो. लाइक से यहाँ पे एक कंडीशनल ऑपरेटर जैसे यूज़ किया है कि इसकी वैल्यू आ गई, नहीं आई तो ये कर दो, अदरवाइज ये वैल्यू सेट कर दो. तो इस टाइप के अगर एक्सप्रेशंस हमें यूज़ करने हैं देन वी हैव टू यूज़ द डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट. ओके. इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यूज़ कर लेंगे तो एज इट इज़ ये स्ट्रिंग लेके सेट कर देगा. ठीक है. तो जब भी एक्सप्रेशंस यूज़ करने हो प्लीज़ यूज़ द डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट. Then I was talking about the regular expression thing, say contact number. So inside this parameter, they've added एक matches जो validation property अपनी attribute था. यहाँ पे इन्होंने regular expression को दे दिया. And then this is the error message. Please enter a valid phone number. So ये क्या करेगा इस parameter में तुम जब भी data डाल रहे हो तो ये पहले इसके against check कर लेगा. If it is not right or in the proper format, it will return me the error message. सो इट बिकम्स वेरी ईजी फ्रेमवर्क लेवल पे कि अपने को काफ़ी वैलिडेशंस आउट ऑफ द बॉक्स हैंडल्ड है. यू जस्ट नीड टू सी कि कौन सा कब अपने को ऐड करना है. सो एंड ये सब अपने को बहुत काम भी आता है आगे. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कवर एवरीथिंग हियर. लेट्स गो बैक टू अ पर्सन सर्विस. सो अभी आउट पैरामीटर्स में डिफाइन करना है तो इसे मैंने पार्टी आईडी डिफाइन कर दिया कि जैसे ही पर्सन बन जाए, पार्टी का रिकॉर्ड बन जाए तो उसकी प्राइमरी की को रिटर्न कर दो. देयर सम थिंग्स व्हिच आई वांट टू कवर यहाँ पे. अब लॉजिक लिखना हो तो इट ऑलवेज गोज इनसाइड द एक्शंस एलिमेंट. ओके. अब यहाँ पे इस सर्विस कॉल को भी हम कवर करेंगे. तो एक चीज़ यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की हमको कवर करनी है विच इज़ ऑल्सो देयर इन दिस डॉक्यूमेंटेशन. सी दिस लाइन, इट हैज़ वन आउट पैरामीटर अ पार्टी आईडी जो अगर हमें इनपुट होता है तो एज इट इज़ सेट हो जाएगा. बट इफ़ यू गाइज रिमेंबर आई टोल्ड दैट if there is a primary key field in our entity and I'm not providing a value, then it will automatically take care of setting a predefined sequence to it as a primary key. तो अगर वो खुद सेट कर दे रहा है तो अपने पास ऑलरेडी ये आउटपुट कर देगा. ओके. तो अब यहाँ पे अब देखो पार्टी आईडी को मैंने कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली सेट नहीं किया है. कैन यू सी दिस? कहीं पे भी हमने जैसे सेट फील्ड करके या जनरली अपन हमेशा वेरिएबल में जब डेटा असाइन कर देते हैं, यहाँ पे वो सब नहीं किया है. नाउ हाउ इज दिस वर्किंग देन? पार्टी आईडी सेट कैसे हो रहा है? सो दिस इज वेयर द कॉन्टेक्स्ट कम्स इनटू पिक्चर. ओके. सो एक बार अभी कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं क्या है एंड देन आई विल शो यू कि यहाँ पे ये सेट कैसे हो रहा है ना. ये चीज़ें भी अपने को एक बार समझने की ज़रूरत है. कई बार हम इसे लिख देते हैं एंड वील अननेसेसरली सेट कि ये मैं बताती हूँ कि अगर मेरे को ये सेट करनी है ना तो एक सेट फील्ड अपने को प्रोवाइड करता है. तो मैं कर दूंगी पार्टी आईडी फ्रॉम, जबकि मेरे को इसकी ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज सम थिंग्स आर ऑटोमेटिकली टेकन केयर बाय द फ्रेमवर्क. सो वी शुड बी नोइंग कि कुछ चीज़ें जो चल रही हैं हमें उसी वे में यूज़ करनी है. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक एट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट.
ये लिंक्स मैं सारे शेयर कर दूंगी। ओके, सो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को अपन ऐसे समझते हैं कि ये एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट है मॉकी फ्रेमवर्क का। अब so it is an interface which is provided in Mocky framework. If you will go inside framework, तुम्हें execution context की बकायदा interface मिलेगा, उसका implementation भी मिलेगा. I don't want to go into the files because it will be too much details. पर अपने को ये समझना है कि context use कैसे करना है. So ये अपना this maintains the state of our artifact which is running. Okay. सो आर्टिफैक्ट की बात करें तो ये एंटिटी हो सकता है, सर्विस हो सकता है। तो जब भी सर्विस रन हो रही है तो उसका पूरा स्टेट वो कैसे रन हो रहा है, उसमें क्या क्या इनपुट पैरामीटर्स है, क्या क्या आउटपुट पैरामीटर्स है, वो अपने आप एक वेरिएबल स्पेस मेंटेन करता है। ओके, सो सी दिस इज द लिटरल वेरिएबल स्पेस फॉर एग्जीक्यूटिंग द आर्टिफैक्ट वेयर एवर पॉसिबल। सो ये अपने आप दिस अगेन फ्रेमवर्क टेक्स केयर ऑफ, जैसे वो एग्जीक्यूट होती है सर्विस तो वो अपने आप अपने कॉन्टेक्स्ट में उसके वेरिएबल्स ले लेता है, उसके आउटपुट रिजल्ट्स ले लेता है। ओके, एंड सो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली एबल टू सेट दैट पार्टी आईडी फ्रॉम देयर। ओके, अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें, वापस से हम कमिंग टू द सर्विस, ये सारे जो इनपुट पैरामीटर्स थे एंड यहाँ पे मैंने एक सर्विस कॉल करी कि ये पार्टी बना दो। अभी के लिए इसको ऐसे समझ लो कि पार्टी का रिकॉर्ड बन रहा है। तो ये देखो इन मैप में मैंने क्या भेजा, कॉन्टेक्स्ट प्लस सम स्पेसिफिक वैल्यू। तो क्या करते हैं, एक लॉगर डालते हैं अपन कॉन्टेक्स्ट को देखने के लिए। एक बार कॉन्टेक्स्ट बिफोर डालते हैं एंड ये सर्विस कॉल के बाद इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ओके, सो माय सर्वर इज ऑलरेडी रनिंग। इस सर्विस को अपन एक बार सर्विस रेफरेंस में भी देख लेते हैं। सो आई विल गो इनसाइड टूल्स एंड सर्विसेज। सो क्विकली तुम्हें कोई भी सर्विस रन करनी हो, सो वी हैव ऑलरेडी टेकन अ लुक एट सर्विस रेफरेंस फ्रॉम द टूल्स ऑप्शन। तो उसमें एक बार अपन फाइंड कर लेंगे अपनी सर्विस। सो दिस इज माय सर्विस क्रिएट पर्सन। एक बार पहले सर्विस डिटेल देख लेते हैं। सो सी, कैन यू सी, एक बहुत सारे इनपुट पैरामीटर्स आ गए जबकि मैंने अलग से कोई डिफाइन नहीं करे। सो दिस इज द वर्क ऑफ द ऑटो पैरामीटर्स विच आर टोल्ड। Okay, it has pulled up all the fields which were defined in my party class. उसने नॉन प्राइमरी की उसके लिए हटा दिया होगा जहाँ पे भी अपना पर्सन के लिए एडेड था, तो सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। ओके, सो यू कैन सी सारी अपनी फील्ड्स आ गई हैं। ओके, एंड वन आउटपुट पैरामीटर्स इज माई पार्टी आईडी। देन यू कैन ऑल्सो सी इसमें एक्शंस भी पता चलता है अपने को सर्विस रेफरेंस में। एंड बिहाइंड द सीन्स इसकी ग्रूवी ही जनरेट होती है हमेशा, सिर्फ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। तो ये उसकी जनरेटेड ग्रूवी भी तुम देख सकते हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार जैसे अपन ग्रूवी में अभी नए होंगे तो तुम थोड़ा चेक कर सकते हो, है ना, कि एक्चुअली में ग्रूवी में कैसे इसको कन्वर्ट करना हो। तो दिस इज द जनरेटेड ग्रूवी फॉर दैट। ओके, अब इसको एक बार रन करते हैं अपन। So what I will do is, in the first run, I'll not give a party ID to it. Okay, let me just give some first name, Gurveen, and I want to show you the validation part as well. See, last name पे उसने खुद से बोला कि please enter a value. Why did this happen? Because there is the required attribute set over here. So it took care of the validations कि ये mandatory है, इसकी value अपने को चाहिए record बनाने के लिए. Okay, तो now what I'll do is, अपन को कंसोल में देखेंगे अपन कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू। I'll just run this service now that I've given the two mandatory fields. So it is successful. Are you guys able to see this or should I copy paste? Okay, दिख रहा है क्या ये, एक बार बता दो। Is the font visible to you guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, cool. So एक कॉन्टेक्स्ट में देखो अपने पास ऑलरेडी जो सारी फील्ड्स थी ना उस सर्विस की, इट हैज़ कम। अब उसमें वैल्यूज़ नहीं है तो वैल्यूज़ नहीं आई, ठीक है।
सो ये फ्रेमवर्क ने किया, अपने पास एक कॉन्टेक्स्ट रहता है, तो ये करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उस सर्विस का, है ना। तो इसको एक मैप की तरह समझ लो, ठीक है। ये अपना मैप है जिसमें की वैल्यू पेज आ जाते हैं, ठीक है। सो इसमें एक रिजल्ट मैप भी रहता है विच ऑटोमेटिकली गेट्स फिल्ड अप यहाँ पे। एंड आई वांट टू यहाँ पे, सो बिफोर में देखो पार्टी आईडी सेट नहीं है, ओके। एंड दिस इज द, एक बार फिर वो सर्विस नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, पार्टी का रिकॉर्ड बना, और दिस इज द कॉन्टेक्स्ट आफ्टर दैट। लेट्स ट्राई टू चेक कि इसमें पार्टी आईडी आ गया, ये देखो ये पार्टी आईडी सेट हो गया, उसकी प्राइमरी की सेट हो गई अपने पास। सो दिस इज हाउ इट इज एबल टू आउटपुट माई पार्टी आईडी एज वेल, सर्विस रन रिजल्ट्स। तो ये अपने को कुछ फ्रेमवर्क लेवल पे चीज़ें प्रोवाइडेड है, तो अपने को पता होनी चाहिए कि चल कैसे रहा है, ठीक है। सो एक कॉन्टेक्स्ट का अब थोड़ा सा समझ में आया ना, ये अपने को ऐसे ही समझना, एक मैप है, वेरिएबल स्पेस देता है, एंड उसका जो सेकेंड फंक्शन रहता है, सो सी दिस लाइन, ओके। सो दिस गिव्स अस एक्सेस टू अ नंबर ऑफ facades, ओके। अब ये facades क्या है, अगेन देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरफेसेस विच आर प्रोवाइडेड इन मॉकी फ्रेमवर्क। जैसे अभी एंटिटी पे काम कर रहे हैं, तो वी हैव एन एंटिटी facade, IMPL तुम्हें मिलेगा। तो थ्रू दिस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आई कैन हैव एन एक्सेस टू दैट facade, क्योंकि फिर थ्रू दैट facade इम्प्लीमेंटेशन ओनली आई कैन परफॉर्म द एक्शंस ऑन दैट एंटिटी। जब भी ग्रूवी स्क्रिप्ट में लिखोगे ना, तो तुम डायरेक्टली अब ये XML के टैग्स तो नहीं यूज़ कर पाओगे। सो देन यू हैव टू डू EC.entity। जैसे तुम EC.entity करोगे, तो तुमको उसका एंटिटी facade का रेफरेंस मिल जाएगा, एंड देन यू कैन से डॉट फाइंड डॉट क्रिएट। अपन ये सब देखेंगे एनीवेज, जस्ट हाई लेवल पे आई वांट टू टेल कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का सेकंड पर्पस क्या रहता है, ठीक है। एंड मुझे कोई सर्विस रन करनी है स्क्रिप्ट में, तो अगेन मैं कॉन्टेक्स्ट से सर्विस के रेफरेंस ले लूँगी, सर्विस facade इम्प्लीमेंटेशन का, एंड देन डॉट करके मैं आगे अपनी सर्विस का नाम, पैरामीटर्स, ये सब दे के आई कैन एग्जीक्यूट माई सर्विसेज। दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यहाँ पे कि सम कॉमन एक्सप्रेशंस जो मॉकी बेस्ड कोड में तुमको मिलेगा। करंट वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो EC.context कर दिया अपन ने, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया उसमें सारी फील्ड्स आ जाती हैं, एक कोई फील्ड की अगर तुमको डेटा देखना है तो डॉट, जैसे अपन मैप के वैल्यूज़ ऐसे एक्सेस करते हैं, डॉट एग्जाम्पल ID तुमको वो मिल जाएगा। की वैल्यू पेयर्स को देख लो, जेसन की तरह है ये, ठीक है। एंड देन इफ़ यू वांट टू सेट सम वैल्यूज दैट आल्सो यू कैन डू, ठीक है। ये अपने को ज़्यादा काम नहीं आएगा, बस ये पता होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अपना इनपुट सारे ले लेता है सर्विस, और आउटपुट में सेट कर देता है इफ़ इट इज़ ऑलरेडी देयर। अगर मैं पार्टी आईडी नहीं देती तो वो नहीं सेट होगा, ओके। मतलब इफ़ द पार्टी आईडी इज़ नॉट जनरेटेड, ओके। हाँ, ओके। सो दिस वाज अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। सो ये चीज़ें ना, नाउ यू हैव टू गो एंड प्ले अराउंड, ठीक है। ये बार चला के देखना सारी चीज़ें, ये कॉन्टेक्स्ट को लॉग में डाल के देखना क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट आवर कॉन्टेक्स्ट। तो अब तुम्हें ये समझ में आएगा, इन मैप में इस पार्टी को बनाने के लिए अपने को सारे इनपुट अलग से नहीं देने पड़े अपने को, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसने ले लिया उसको जो जो चाहिए था, जो जो मैंने फर्स्ट नेम दिया था, लास्ट नेम दिया था, इसके थ्रू ये वैल्यू गई है इसके अंदर, ठीक है। एंड पार्टी टाइप मुझे स्पेसिफिक देना था, तो दिस इज़ ऑलवेज लाइक अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा जो सर्विस के लिए जा रही है। एंड आउट मैप रहता है जो अपने रिजल्ट्स हैं इसमें, तो अपन ने कॉन्टेक्स्ट ही आउट कर दिया क्योंकि उसमें सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे अपने। सो जो वेरिएबल आउट पैरामीटर्स में सेट करना है वो कॉन्टेक्स्ट से आफ्टर द सर्विस रन इज कंप्लीट इट विल सेट द वैल्यूज। सो अभी इम्प्लीमेंटेशन को भी रखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट सर्विसेज नाउ। Okay, I had one more thing, let me check. हाँ, सो ये कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो मैं बता रही थी कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म इन द फ्रेमवर्क, तो इसको एक बार रीड करना हो। सो सी, these facades are available for easy access to different functionalities जो अपने पास फ्रेमवर्क में है, ठीक है। अभी मैं एंटिटी facade की बात करूँ, तो सारे डेटाबेस ऑपरेशंस करने हो तो थ्रू एंटिटी होगा ये, ठीक है। मुझे सारी सर्विसेज रन करनी है तो थ्रू सर्विस होगा ये। देन अदर्स आर अवेलेबल, वेब facade अपनी वेब रिक्वेस्ट के लिए है। देन वी ऑल्सो हैव दी एरर मैसेजेस के लिए मैसेज facade अवेलेबल है। देन करंट यूज़र डेटा चाहिए तो यूज़र facade है। तो जैसे ही आगे अपने को ये सारे यूज़ आते जाएंगे वी विल बी चेकिंग ऑल दोज। अभी अपने लिए इम्पॉर्टेंट है एंटिटी और सर्विस,
for now. Now let's check the service implementation. So हमने implementation तो quickly देख ही लिया उस service के अंदर जो अपन ने actions के अंदर लिखा था. That was the implementation of my service. So there are different types of services. Let me show you यहाँ पे. तो यहाँ पे type attribute तुमको मिलेगा, ठीक है. So there are different values. अभी अपन जिस पे focus करेंगे that will be inline, which is the default type. अगर मैं कुछ भी type नहीं देती हूँ, it's always inline. It has a script. एंड एक इंटरफेस को देख लेंगे और एंटिटी ऑटो क्या है, ठीक है. ये तीन अपने को पता होने चाहिए कैसे चलती हैं एटलीस्ट, बिकॉज दीज विल बी हेविली यूज्ड एवरीवेयर इनसाइड द फ्रेमवर्क एंड फॉर आवर डेवलपमेंट एज वेल. ओके, इसमें नहीं है तो अपन एक एक करके खुद ही देख लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन. अपन इससे पहले एंटिटी ऑटो सर्विसेज को देख लेते हैं. सो एंटिटी ऑटो सर्विस में क्या होता है, आई डोंट हैव टू राइट एनी इम्प्लीमेंटेशन. मैं कुछ भी एक्शंस में नहीं डालूंगी. सॉरी, दिस इज दिस वन. आई डोंट हैव टू इम्प्लीमेंट माई सर्विस. ये ऑटोमेटिकली टेक केयर करेगा उस सर्विस को रन करने के लिए. बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है द वर्ब एंड द नाउन वैल्यूज. ओके, सो इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, बेसिक सर्विसेज में अपन ने बेसिक एंटिटीज में कुछ यूएम रिलेटेड एंटिटीज देखी थी अपने फर्स्ट सेशन में. सो से आई वांट टू प्रिपेयर डेटा फॉर दैट यूजिंग अ सर्विस. तो मैंने क्रिएट दे दिया. देन फॉर नाउन इट शुड बी अ वैलिड एंटिटी नेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड आई हैव टू गिव माई टाइप एज एंटिटी ऑटो. तो ये नाम से ही थोड़ा बहुत ये बताता है. एंटिटी ऑटो मतलब कि ये ऑटोमेटिकली ये देखेगा कि मुझे क्या एक्शन करना है इस पर. दैट विल बी वर्क. तो इसमें मैं क्रिएट दूंगी तो क्रिएट कर देगा. स्टोर दे दूंगी तो वो क्रिएट या अपडेट करेगा. डिलीट करना है डायरेक्टली तो इट विल टेक केयर. मुझे यहाँ पे तुम देखो तो एक्शंस एलिमेंट नहीं है, देखो मेरे को कुछ भी यहाँ पे देना नहीं पड़ा. सो ये वर्ब और नाउन के हिसाब से ऑटोमेटिकली इट विल आइडेंटिफाई विच ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन दिस एंटिटी. एंड देन यू हैव टू गिव द इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स अगर तुम कुछ उस पर देना चाहते हो तो दैट यू हैव टू डिफाइन. ओके, so let me show you in action. इसको एक चेक करने के लिए ना, अब मेरी एंटिटी का नाम ना मॉकी ट्यूटोरियल है, ठीक है. अब सपोज मैंने ट्यूटोरियल दे दिया यहाँ पे, मतलब देयर इज सम, इट्स नॉट मैचिंग विद एनी एंटिटी नेम. ओके, एंड लेट मी ट्राई टू रन इट. अब ये सारी चीज़ें ना तुम लोग भी करके देखना एक बार. ओके, व्हेन यू प्ले अराउंड ऑल दीज थिंग्स तो तुमको समझ में आएगा ये कैसे चल रहा है. एंटिटी ऑटो बहुत काम में आता है जब अपने को क्विकली रिकॉर्ड्स बनाने हो, ठीक है. सो एंड जो एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ हैं ज़रूरी नहीं अपने को डिफाइन करना है उसको. आई विल शो यू डायरेक्ट भी उसको यूज़ कर सकते हैं. जिसको टर्न बाय टर्न एक बार इसको चला के देखते हैं अपन पहले. ओके, I'll just quickly find my service. So let me say run service. Did you see अपने को error आ रहा है यहाँ पे, no definition found for the entity name tutorial. That was why, because जैसे ही मैंने entity auto बोल दिया ना service को, तो it will look for the valid entity name in my noun. Okay, so if I will just undo my changes, इसको refresh कर लेते हैं एक बार, because I changed the name of it now.
So now you can see it is loading up properly. ठीक है, so this is how the entity auto works. Okay, अब entity auto का ये example था via the XML file. कई जगह तुमको अभी जो अपन ने पार्टी सर्विसेज में देखा था, ये सर्विस कॉल, ये देखो, और ये सर्विस कॉल क्या थी, ये क्रिएट देन आर सिंबल एंड देन दिस इज द एक्चुअली द एंटिटी. ये डायरेक्ट ना एंटिटी पे ही रिकॉर्ड बन रहा है, तो ये भी एंटिटी ऑटो सर्विस ही चल रही है अपनी. ठीक है, because I've not given see any path of the file where this service is existing, क्योंकि ये actually कोई mental.party.party services नहीं है, ये अपनी entity का नाम है और मैं fully qualified नाम दिया है हमने यहाँ पे और what operation it is doing. ठीक है, तो अगर तुम्हें इस टाइप के भी दिखते हैं, so what it is doing is ये directly entity पे record बना रहा है. okay? सो ये अपना था एंटिटी ऑटो सर्विसेज. काफ़ी सिंपल है, अपने को बस मेक श्योर करना है एंटिटी नेम प्रॉपर होना चाहिए उसके लिए. देन सो सी यहाँ पे भी तुम देखोगे डॉक्यूमेंटेशन में. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूजिंग इन अ स्क्रिप्ट. ओके, तो अभी तक तो मैंने XML में बताया तुमको, सर्विस कॉल एलिमेंट से मैंने नाम दे दिया अपनी सर्विस का एंड इनपुट पैरामीटर्स आउटपुट पैरामीटर्स दे दिए. नाउ से आई वांट टू यूज इट इन अ स्क्रिप्ट, तो उसका एग्जांपल उन्होंने दिया है. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू एक्सप्लेन द EC, तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. और ना अपने को ये EC डॉट सर्विस समझ नहीं आता ये कहाँ से आ रहा है. तो ये EC जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट है अपना, जो हमेशा बन जाता है जब भी मैं अपने आर्टिफैक्ट को रन कर रही हूँ, तो यहाँ पे EC डॉट सर्विस से मैंने सर्विस को रन करना है, तो मुझे सर्विस फैसाड के थ्रू ही रन करना पड़ेगा इन अ स्क्रिप्ट. ओके, सो मैंने उसका रेफरेंस लिया. अभी सिंक को भी छोड़ दो, डॉट नेम में अपन अपनी नेम दे देते हैं सर्विस का. सो दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द नाउन. तो ये एंटिटी ऑटो कैसे हो गया, क्योंकि अपन ने सिर्फ वर्ब और नाउन प्रोवाइड किया है. दिस इज द एंटिटी नेम. और डॉट पैरामीटर्स में तो मैं मैप में अपने सारे पैरामीटर्स की वैल्यू पास कर दो एंड डू अ डॉट कॉल. So it will take care of creating a record to this entity via a service call. So this is the entity auto. इनलाइन अपन ने देख लिया है. इनलाइन क्या रहता है, अपना डिफॉल्ट टाइप रहता है कि सर्विस एक्शंस एलिमेंट में होना चाहिए कुछ भी. ठीक है, सो जैसे ही मैं इसको हटा दूंगी यहाँ से एंटिटी ऑटो को, सॉरी सर्विसेस, इफ आई रिमूव दिस फ्रॉम हियर इट बिकम्स माय इनलाइन सर्विस. अब मैं इसको रन करूंगी ना, इट विल थ्रो एन एरर दैट यू हैवंट डिफाइंड एनीथिंग इन द एक्शंस एलिमेंट बिकॉज इट हैज बिकम एन इनलाइन सर्विस नाउ. ओके, सो अपना एक इनलाइन सर्विस का एग्जांपल यही है, क्रिएट पर्सन के एक्शंस के अंदर ही अपनी स्क्रिप्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन स्क्रिप्ट होनी चाहिए. अब ज़रूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट जो XML स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे हो. अनदर एग्जांपल विच दे हैव गिवन इज, मैं एग्जांपल सर्विसेज खोलती हूँ तुम्हें. Just see this example. Okay, तो एक सर्विस डिफाइन करी है उन्होंने, वर्ब और नाउन दिया है. ठीक है, टाइप मुझे स्क्रिप्ट देना पड़ेगा यहाँ पे. एंड यहाँ पे जो अपनी सर्विस है देखो, यहाँ पे भी डॉट XML सर्विस ही है. ओके, सो दिस इज लोकेटेड इनसाइड द component. दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग component इज important. थ्रू दिस component, ये component डॉट XML को सारी को चेक करता है, जहाँ पे भी उसको नेम एग्जाम्पल मिल जाएगा. इसको पता है कि ये वाली फाइल मेरी यहाँ इस component के अंदर इस पाथ में पड़ी है, तो इसके अंदर ये चेक कर लेगा ये वाले पाथ के अंदर. एक बार इसको देख लेते हैं. दिस इज अंडर एग्जांपल सी स्क्रिप्ट मोकी एग्जांपल दिस. सो जो मैं इनसाइड एक्शंस के अंदर लिख सकती हूँ ना, वही से मैंने क्या किया है, एक XML फाइल में डाल के लिख दिया है ना. सो बोथ वेज आर फाइन, बट इससे क्या होता है, अपन डायरेक्ट इससे अपनी फाइल नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ती जाती हैं एंड टू मैनेज देम कैन बी एन इशू समटाइम्स. सो अगर तुमको XML में ही लॉजिक लिखना हो ना, सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि तुम अपने एक्शंस के एलिमेंट में लिख दो until unless it's a very long service or you have a proper reason to put it inside as a separate XML script. Okay, सो ये दोनों चीज़ है सेम ही, बस इसको कॉल करने का तरीका अलग है. एक को अपन एक्शंस के अंदर डाल दिया अपन ने, एक को अपन अलग से स्क्रिप्ट फाइल में डाल के
उसका पाथ और टाइप प्रोवाइड करके वी कैन राइट इट. देन लेट्स कम टू आवर स्क्रिप्ट सर्विस का ही दूसरा एग्जांपल है. सो अपने को स्क्रिप्ट्स जो प्रोवाइड करता है, इट कैन बी ग्रूवी, एक्सएमएल एक्शंस और एनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को अपन यूज़ करके स्क्रिप्ट अपनी जो सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन है लिख सकते हैं. सो ग्रूवी में लिखना अपने को एक बार आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. एक्सएमएल आना चाहिए, एंटिटी ऑटो देख लिया अपन ने, और एक ये जो सर्विस स्क्रिप्ट है वाया ग्रूवी, ये वी हैव टू ऑलवेज चेक. वी हैव ऑलरेडी चेक कि इसकी पाथ कहाँ देते हैं. लोकेशन एट्रीब्यूट में अपन इसका पाथ दे देते हैं. यहाँ पे इन्हें क्लास पाथ दे दिया. सो इसका एग्जांपल तुमने अगर क्विक ट्यूटोरियल में देखा होगा, सो यू कैन फाइंड इट देयर एज वेल, अ सिंपल एग्जांपल. ओके, तो ये ग्रूवी सर्विस का एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी वहाँ पे, ठीक है. सो व्हाट देव डन इज देव, उनको भी अपनी ट्यूटोरियल एंटिटी पे डेटा डालना है, एंड देव गिवन एन एग्जांपल हाउ आई कैन डू इट वाया स्क्रिप्ट. सो लोकेशन में बता दिया कि ये कंपोनेंट के अंदर एक क्रिएट ट्यूटोरियल डॉट ग्रूवी फाइल पड़ी है, इसके थ्रू अपने को ये सर्विस को रन करना है. Then they have defined input output parameters, we've already checked that. तो ये फाइल अपनी जो है, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन. तो थोड़ा सा अपने को बेसिक ग्रूवी आने ही चाहिए. ऑफ कोर्स बहुत सारे तुम्हें एग्जांपल्स यहाँ पे ही मिल जाएंगे मॉकी में, सो दैट यू आर एबल टू राइट बेसिक कोड. तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ट्यूटोरियल में वैल्यू डालनी है. तो एक अगेन देखो, ये ईसी स्क्रिप्ट में ना, टू यूज़ योर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन एंटिटी, तुमको इसका रेफरेंस चाहिए एंटिटी फैसाड का, ठीक है. तो इसीलिए ये ईसी डॉट एंटिटी के थ्रू ही मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ, ये फंक्शनैलिटी को ऑफ माई फ्रेमवर्क. ओके, तो ईसी डॉट, जैसे ईसी डॉट सर्विस किया था, जैसे ईसी डॉट एंटिटी है यहाँ पे. तो ये मेक वैल्यू क्या करता है, अपना एक्चुअली एक एंटिटी वैल्यू प्रिपेयर कर देता है. अगर इसको देखना है तो मैं बता देती हूँ. सो एंटिटी वैल्यू रहता है अपना. सो ये फाइल ऑलरेडी है. ये बेसिकली अब एंटिटी वैल्यू एक अपने रिकॉर्ड के लिए ना अपने को एक वैल्यू प्रोवाइड कर देती है कि अच्छा ये अपने को इस एंटिटी के लिए एक वैल्यू बनानी है, एक रिकॉर्ड बनाना है. आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, ताकि इससे अपने को कंफ्यूजन बढ़ेगी. जस्ट इसका भी अपने को पर्पस समझना है क्या है, ठीक है. सो एंड देन व्हाट इट विल डू इज, अब मेरे को फील्ड सेट करनी है इसमें, जो इनपुट पैरामीटर्स आए हैं यहाँ पे. सो ये सेट फील्ड्स है, इसकी डेफिनेशन है. तो इसके देर आर सर्टन पैरामीटर्स विच दिस मेथड एक्सेप्ट्स. तो थ्रू कॉन्टेक्स्ट क्या हो रहा है ना, वही सारे इनपुट पैरामीटर्स आ जाएंगे, एंड इसको ट्यूटोरियल नेम में ट्यूटोरियल नेम जाके सेट हो जाएगा, और जो पैरामीटर्स है उसकी वैल्यूज जाके सेट हो जाएंगी. अब अगर ट्यूटोरियल आईडी नहीं दिया है, तो मतलब अगर वो प्राइमरी की है, तो ये अपन को अगर प्राइमरी की सेट करना है, तो अगर ये नहीं आ रहा है थ्रू द इनपुट पैरामीटर्स, तो ये मेथड रहता है अपना सेट सीक्वेंस्ड आईडी प्राइमरी. एक प्राइमरी की सीक्वेंस को सेट कर दिया, एंड डॉट क्रिएट से मेरी वैल्यू बन गई, ठीक है. सो आई नो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन अगर तुमको हो रहा है, मैं फाइल दिखा देती हूँ. तो ये अपनी ये फाइल है जो एंटिटी वैल्यू में सारे फंक्शंस मेरे प्रोवाइडेड है. देखो, क्रिएट क्रिएट्स अ रिकॉर्ड फॉर दिस एंटिटी वैल्यू. तो ये ओवर द टाइम यूज़ करके ना अपने को सब आइडेंटिफाई हो जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दिस अ लॉट. ओके, सो दैट्स व्हाई अभी अपन धीरे धीरे अभी अपन बेसिक सर्विसेज को देखेंगे. अब जैसे ही अपन मल्टीपल एंटिटीज़ के साथ काम करेंगे, तो वो अपन अपने असाइनमेंट को ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाएंगे कि अपन अभी सिंपल एक एंटिटी जो अपन ने बनाई है ना, उस पर ही तुम ये बेसिक सर्विसेज लिख के देखना, है ना. अभी अभी इतना ही रखेंगे. सो दिस इज़ हाउ दिस ग्रूवी विल वर्क. इसका अगर दूसरा तुमको एग्जांपल देखना हो, क्विकली आई विल जस्ट टेल यू वन मोर. उसमें ज़्यादा कोड है, सो यू माइट गेट मोर रेफरेंस ऑफ. सो पार्टी सर्विसेज में ही एक फाइंड पार्टी है. अगेन दे हैव रिटन द टाइप है स्क्रिप्ट. लोकेशन दे दिया है, देखो कि मेंटल यूएसएल में पड़ी हुई है ये फाइल अपनी, फाइंड पार्टी डॉट ग्रूवी. सी इनपुट पैरामीटर्स आर देयर, आउटपुट पैरामीटर्स आर देयर, नो एक्शंस एलिमेंट. व्हाई? बिकॉज ये अपना पूरा एक्शंस लिखा हुआ है फाइंड पार्टी डॉट ग्रूवी में. तो ये फाइल को अगर मैं चेक करूँ, यू नो द लोकेशन, यू कैन लोकेट इट देयर. अब इसमें भी, अब यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स कॉन्टेक्स्ट तो मैंने भेजा नहीं. यू माइट आस्क
कि वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है. सो क्या होता है ना, जब भी ये लोकेशन में होता है, सो बिफोर दिस कंट्रोल गोज टू दिस फाइल, वो थ्रू कॉन्टेक्स्ट सारी जो पैरामीटर्स है ना, इसको एक्सेस मिल जाता है इस फाइल को. ओके, दिस इज हाउ द दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आई वुड से. ओके, सो सारे अपने पास पैरामीटर्स अवेलेबल हैं. सो इफ़ यू गो हेयर से पार्टी आईडी यहाँ पे है, आई कैन सिंपली एक्सेस माई पार्टी आईडी. देखो डायरेक्ट उन्होंने यूज़ किया है क्योंकि ये अपने को अवेलेबल रहेगा इस ग्रूवी सर्विस में. ओके, सो अब इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस ले लिया पहले. ठीक है, एंड देन दे हैव इम्पोर्टेड डिफरेंट फाइल्स जो अपने को क्लासेस यूज़ करनी है ग्रूवी की. एंड ये ऑपरेशंस में मैं इतना भी नहीं जाना चाहती हूँ, विल टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, अभी अपन बेसिक सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं. बट ये कर क्या रहा है अपन देख लेते हैं. ec.entity.find से ये उसके रिकॉर्ड्स को फेच कर सकता है. कुछ मुझे पर्टिकुलर बेसिकली सेलेक्ट स्टेटमेंट हो रहा है, तुम समझ लो ये. ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एंटिटी हो रहा है. एंड देन इट इज़ डूइंग सर्टन ऑपरेशंस. उसने उसको कंडीशंस बना दी, सेट कर दिया. एंड देन जो भी अपने को आउटपुट पैरामीटर करना है, इसका आउटपुट क्या है एक बार देखते हैं. से पार्टी आईडी लिस्ट है. तो ये अगर मैंने पार्टी आईडी लिस्ट नाम का वेरिएबल इसमें बनाया है, तो अगेन जैसे ही सर्विस रन कंप्लीट होगी, सर्विस रन कंप्लीट होगा, कॉन्टेक्स्ट में वो रिजल्ट्स चले जाएंगे. इट विल पिक अप दैट वैल्यू एंड इट विल रिटर्न. दैट्स सिंपल. इतना सिंपल है. अपने को बस ये देखना है कि अपन लॉजिक अच्छे से लिखें. ओके, सो ये अपना ग्रूवी सर्विस के 2-3 एग्जांपल्स हैं. इसको एक बार चेक कर लेना है ना. व्हाट आर वी फॉरगेटिंग. ओके, इनलाइन सर्विस देख लिया अपन ने, एंटिटी ऑटो देख लिया, एक स्क्रिप्ट का देख लिया. अब एक इंटरफेस का भी टाइप देख लेते हैं, कई बार अपने को ये भी काम में आता है. सो इंटरफेस में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता है. लेट मी शो यू एन एग्जांपल. ऑर्डर सर्विसेज में है ये. तो ये ऑर्डर सर्विसेज में अगर अपन देखें तो एक सर्विस डिफाइंड है. ठीक है, वर्ब दिया एक मीनिंगफुल, नाउन दिया. अब देखो यहाँ पे वर्ब चेंज दिया है क्योंकि अब अपने को ना ऐसा कुछ एंटिटी ऑपरेशन नहीं करना है. यू कैन गिव अ मीनिंगफुल नेम टू इट. ओके, अगर एंटिटी ऑपरेशन करना होता तो अपन को स्टोर, फाइंड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इनमें से वर्ब्स होने चाहिए. ठीक है, ये सब तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा. अब यहाँ पे टाइप दे दिया है इंटरफेस. सो इंटरफेस क्या करता है ना, अपना एक काइंड ऑफ एक फॉर्मेट या स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है कि ये इनपुट पैरामीटर्स है इसके, ये आउटपुट पैरामीटर्स है. अब हो सकता है तुम्हारी ऐसी 2-3 सर्विसेज हो जिसको एक सिमिलर सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स चाहिए. तो ये रीयूजेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है. अपन इसको टाइप इंटरफेस डिफाइन कर देते हैं. मैंने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया. अब इसको यूज़ कैसे करना है. ठीक है, सो मेरे को एक बार इसका देखना है कि कहाँ पे ये कॉल हो रहा है ताकि अपन एक एग्जांपल देख पाएँ. सो इसी सर्विस में एक सर्विस है अपनी प्लेस ऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इम्प्लीमेंट्स. दिस इज द एलिमेंट विद विच वी यूज. ओके, इम्प्लीमेंट्स विच सर्विस, दिस सर्विस. ये पूरा पाथ उसका, डॉट द वर्ब एंड देन द नाउन ऑफ इट. तो इससे क्या हुआ, इसने सारे इसके इनपुट पैरामीटर्स, आउटपुट पैरामीटर्स इनहेरिट कर लिए. तो अब मेरे को अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये सारे इसमें आ गए. एंड अगर एक्स्ट्रा मुझे कुछ डिफाइन करना है तो आई कैन ऑलवेज डू इट यूजिंग माई इन पैरामीटर्स. ओके, एंड किसी को मुझे अलग से और वैलिडेशंस डालने हैं तो ये इनपुट पैरामीटर्स में डाल दो तो वो ओवरराइड हो जाएगा. ठीक है, आउटपुट पैरामीटर्स भी तुम डिफाइन कर सकते हो. इसको देखते हैं अपन प्लेस ऑर्डर को. लेट मी सी द सर्विस डिटेल ऑफ इट. तो ये देखो, उस इंटरफेस में ऑर्डर आईडी, पार्ट सीक्वेंस आईडी ऑलरेडी डिफाइंड था. एंड ये प्लेस डेट और रिक्वायर्ड इन्वेंट्री उसने अलग से उस सर्विस से ले लिया. सो दिस इज हाउ इट इनहेरिटेड एवरीथिंग.
एंड अगर मेरे को एक और सर्विस लिखनी है, मेरे को पता है कि ऑर्डर आईडी तो चाहिए, पार्ट सीक्वेंस आईडी चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रिपीटिंग दैट कोड एवरीवेयर, व्हाट यू डू इज डिफाइन एन इंटरफेस, इम्प्लीमेंट दैट ऑफ, ओके। तो तुम उसको रीयूज कर सकते हो अक्रॉस योर सर्विसेज। सो दिस वाज अबाउट आवर टाइप इंटरफेस। ओके, एक बार अपन कॉलिंग सर्विसेज को भी चेक कर लेते हैं। हमने कहीं ना कहीं तो चेक कर ही लिया सर्विस कॉल को कैसे करते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको भी। ओके, सो अब मैंने सर्विस लिख ली, आई हैव टू नाउ एक्सेस दैट सर्विस, सो दैट इज बेसिकली कॉलिंग सर्विसेज, है ना। सो यहाँ पे जो एग्जांपल है, दैट्स अगेन द यूज ऑफ कॉलिंग सर्विसेज इन अ स्क्रिप्ट, ठीक है। सो अगेन अब ये पैटर्न तुमको समझ में आ रहा होगा। स्क्रिप्ट में यूज करना है तो मुझे ईसी डॉट सर्विस पहले रेफरेंस लेना ही है, ओके। आई कैन नॉट डायरेक्टली डू अ सर्विस कॉल। सो तो ये एसिंक और सिंक का अपन बात कर लेते हैं, बहुत जगह तुम्हें मिलेगा। तो ये है कि मुझे ये सर्विस को एसिंक्रोनस मोड पे चलाना है। एसिंक्रोनस दैट मीन्स कि इट डज नॉट हैव टू वेट फॉर अदर ऑपरेशंस टू कंप्लीट, ये अपनी सर्विस चलती रहेगी, ठीक है। सो एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट रिटर्न एनी रिजल्ट्स। अगर तुम देखोगे इसको कहीं पे भी अपन ने कलेक्ट नहीं किया है इसके रिजल्ट्स को। सो आई जस्ट सेड ईसी डॉट सर्विस एसिंक, नेम में मैंने सर्विस दे दिया, फिर ये पैरामीटर्स है, यहाँ पे ये मैप इन्हें बना दिया उस पैरामीटर्स का, एंड डॉट कॉल कर दिया है। एंड देन अगर मुझे सिंक्रोनस मोड पे सर्विस चलानी है, देन व्हाट आई डू इज ईसी डॉट सर्विस डॉट सिंक, है ना। अब इसमें क्या होता है, जब तक ये सर्विस कंप्लीट नहीं होती है ना, आर कंट्रोल फ्लो विल नॉट मूव फॉरवर्ड। तो इसीलिए अपने इसके पहले रिजल्ट्स रिटर्न होंगे, फिर अपने जो भी आगे में थ्रेड में कुछ भी चल रहा है इंटरनली, तो वो प्रोसीड होगा, ठीक है। सो यहाँ रिजल्ट में अपने सारे जो भी द वे ऑफ कॉलिंग इट इज सिमिलर। डॉट नेम में तुम इसका पाथ दे देते हो, पैरामीटर्स में पैरामीटर्स की लिस्ट या मैप दे दो, एंड देन यू डू डॉट कॉल, and this is how you can call the different services in a script file. There are other parameters, उसको देख लेना कैसे other ways and how we can call the services। ये अपने को मेन तो ये देखना है ec डॉट सर्विस से स्क्रिप्ट के थ्रू कॉल होता है, एंड जो अपन ने XML में ऑलरेडी देखा था पार्टी सर्विसेज का एग्जांपल, that's why I was not going in between that. So this is the way in which we call a service in an XML actions। तो ऑलरेडी मेरे को एक प्रोवाइडेड है यहाँ पे सर्विस कॉल का, मेरे को नेम देना है फुल नेम विच इज़ नीडेड, इन मैप दे दो, आउट मैप दे दो। सिमिलर चीज़ है, बस द वे ऑफ यूजिंग इट इन XML स्क्रिप्ट एंड अ ग्रूवी स्क्रिप्ट इज डिफरेंट। सो ये सर्विस कॉल हो गया, एक पूरा पाथ वाला भी देख लेते हैं। ये देखो अब यहाँ पे वो पाथ्स वाले वे से, क्योंकि दिस इज अ सर्विस, जो अभी जस्ट अपन ने सर्विस देखी ऊपर उसको कॉल कर रहे हैं इनसाइड दिस सर्विस। तो ये पूरा पाथ दिया मैंने, ऑल्दो ये सेम सर्विस में है पार्टी सर्विसेज में, बट यू हैव टू गिव द प्रॉपर फुल नेम ऑफ दैट सर्विस। सो यू डिफाइन दैट, यू गिव द नाउन एंड वर्ब, एंड इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स दे दो, तो ये सर्विस कॉल हो जाएगी, एंड इट विल रिटर्न द रिजल्ट्स इन योर आउट मैप। सो yeah, this is about the services। yeah, आई होप तुमको अब सर्विसेज लिखना कैसे डिफाइन करना है, कैसे उसके अलग अलग तरीके इम्प्लीमेंटेशन के थोड़ा आइडिया लगा होगा। इसमें बहुत सारे एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स है, यूएसएल में देख सकते हो तुम लोग, है ना। अब अपन असाइनमेंट की बात अगर करें तो वॉट एवर वी हैव सीन टुडे विल ट्राई टू रेप्लिकेट दैट। हट क्यों गया, मैंने डाला था इसमें। ओके, आई थिंक कुछ सिंक इशू हो गया है इसमें। आई जस्ट ओपन इट फ्रॉम माय ड्राइव।
तो अपने को ये जो अपने ऑलरेडी एंटिटी लिखी थी, पहले तो वो डेटा फाइल्स को कंप्लीट करके पुश कर दो. दैट वाज वन वे ऑफ क्रिएटिंग डेटा फॉर योर एंटिटीज. अब अपन थ्रू सर्विस इस एंटिटी को पॉपुलेट करके देखेंगे. ठीक है. तो अपन ने एंटिटी ऑटो सर्विस देखा है एंड आई ऑल्सो शोड एन एग्जाम्पल मॉक ट्यूटोरियल एंटिटी से. तो अभी आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक वन. एक एंटिटी ऑटो सर्विस लिखना. ठीक है. एक डिफ़ॉल्ट के साथ अंदर देखना तुम एक्शंस में क्या लिख सकते हो ताकि अपना रिकॉर्ड बन जाए. ठीक है. व्हेनेवर आई से डिफ़ॉल्ट टाइप, नाउ यू शुड नो कि क्या डिफ़ॉल्ट टाइप रहता है सर्विस लिखने का. ठीक है. देन व्हाट यू डू इज, जैसे अपने क्विक ट्यूटोरियल से रेफरेंस ले लेना अभी के लिए, एंड राइट अ ग्रूवी स्क्रिप्ट एंड उसको कॉल करना थ्रू योर टाइप स्क्रिप्ट एंड लोकेशन ऑफ दैट फाइल. ओके. सिंपल एक रिकॉर्ड बनाना है वैसे ही. वो यू डू दैट मेक वैल्यू, set the fields through context, and then you do the dot create to it. And then if you remember अपन ने डेटा लोड में एक CSV फाइल को देखा था. there were two ways. One is कि तुम through entity name दे सकते हो and you can also give a service name. The first line of that CSV was the service name and what type is there, and in the second line it was the input parameters of it, and then following were the records. तो एक बार अब उसको भी चला के देखना. ओके. जो भी तुम सर्विस लिख रहे हो उनमें से कोई भी एक सर्विस को लेके जस्ट क्रिएट प्रिपेयर दैट डेटा फाइल एंड लोड इट. ओके. लोड कमांड से या जैसे भी तुमको यूज़ करना है थ्रू द एंटिटी टूल्स. अब उस सर्विस के अपन अगर बात कर लें तो थोड़े वैलिडेशंस को चेक कर लेंगे अपन. मेक श्योर कि ऐसे अपने को ट्रेनिंग नेम हमेशा मैंडेटरी चाहिए, है ना. सो उसको अब तुमने देख ही लिया डिफरेंट वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स विच आर अवेलेबल. डेट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए. अभी के लिए अपन एक एग्जांपल फॉर्मेट ले लिया अपन ने. एंड देन जो भी तुम्हारे डिफरेंट फील्ड्स अपन ने उस एंटिटी की फील्ड्स में डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ फील्ड्स रखे हैं. तो जस्ट फ्रॉम योर ओन एंड आई वुड से कि तुम देखना अगर तुम कोई और वैलिडेशंस डाल सकते हो सो दैट इट इनपुट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा ओनली. ओके. एंड रिटर्न करने के लिए रिटर्न द प्राइमरी की ऑफ इट, द ट्रेनिंग आईडी. एंड इसको लोड करके पूरा डेटाबेस में चेक करना कि रिकॉर्ड्स बन रहे हैं. एंड देन यू पुश ऑल दीज फाइल्स नाउ. ओके. डेटा फाइल सारी पिछली एंड योर न्यू सर्विस फाइल. एक सर्विस फाइल बनेगी उसमें तुम डिफाइन करते जाना. गिव अ प्रॉपर नेम टू इट. Follow all the conventions the way it is done already in out of the box examples in Mocky. Okay. So yeah, we'll keep it simple. अब इसको नेक्स्ट अपन और इम्प्लीमेंटेशन में और क्या क्या ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं. मेरे को कुछ अब हैंडलिंग करनी है कुछ डेटा की ना, मुझे कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी है या मुझे मल्टीपल एंटिटीज़ के साथ काम करना है. तो इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि अब इसको अपन अपनी सर्विस को और कैसे बिल्ड कर सकते हैं. फॉर नाउ अपन इसको सिंपल एक सर्विस को पहले इम्प्लीमेंट करके देख लो. ठीक है. एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, कुछ क्वेश्चंस डाउट्स अभी के लिए. सर्विस का थोड़ा समझ में आया अभी बेसिक, हाउ यू फ्रॉम वेयर यू कैन सी एंड हाउ यू कैन राइट अ सर्विस. यस मैम. एक्चुअली सर्विस इम्प्लीमेंट करी थी वो एग्जांपल वाले कंपोनेंट में, बट आई थिंक वो काफ़ी बेसिक थी और ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें फील्ड्स भी ज़्यादा है. हाँ. तो जब हैंड्स ऑन करेंगे तो आई गेस हो तो या जाना चाहिए बेसिक वाला. यस. या. बट आई थिंक CSV वाले और ग्रूवी में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा अभी. हाँ. तो अभी वो इसमें जो बेसिक अपन ने अभी एग्जांपल्स देखे हैं ना उसको ही फॉलो कर लेना. बिकॉज आई नो ग्रूवी भी, आई एम नॉट श्योर अभी कितना तुम लोग को भी उसमें कंफर्टेबल हो. सो जो इसलिए आई शोड कि वो जो फाइंड पार्टी डॉट ग्रूवी शुड बी अ गुड प्लेस एज अ रेफरेंस एंड योर क्विक ट्यूटोरियल के लिए. अभी तो सिंपल अपने को ट्यूटोरियल जैसे ही बना के देखो पहले तो. ठीक है. फिर अपन इसको और देखेंगे क्या क्या अपन ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं. ओके. सो आई हैड दिस मच इन माई माइंड फॉर सर्विसेज. अपन ने सब कवर कर लिया है. नेक्स्ट में अपन और सर्विसेज में जो ऑपरेशंस होते हैं विच आई वाज टेलिंग कि इनसाइड दिस देखो इफ़ यूज़ किया है, मेरे को आइटरेशन यूज़ करना है, ये बेसिक चीज़ें अपने को बहुत काम में आती हैं. तो उसके सारे एलिमेंट्स प्रोवाइडेड है सर्विसेज में, सर्विस एक्शंस में. तो वील जस्ट हैव अ लुक एट दैट इन द नेक्स्ट सेशन, how we can handle, how we can add different handling to our data. So, okay, I'll stop recording then.